السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں ہما دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ اے رب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ بلوچستان کے 21 اضلاع میں بارشیں تباہی بن کر برسیں، 8 جانیں بھی گئیں اور کوسٹل ہائی وے کا پل بھی بہہ گیا۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے ایسی تباہی مچائی کہ 8 افراد کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کوسٹل ہائی وے کا پل بھی بہتے پانی کی نظر ہوا، لیکن ہب کے ریلے میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ بی بی نانی پل میں شگاف پڑا تو سندھ پنجاب کی کوئٹہ کے لیے شاہراہ بند کرنا پڑی۔ زمینی رابطہ رہا نہ ہی پل کا ایک حصہ۔ ڈیرہ بگٹی میں 4 سے 5 فیٹ تک گھروں میں پانی جمع، لوگ جائیں تو کہاں جائیں۔ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل، لیکن سامان پانی میں تیرتا رہا۔ سیلابی ریلے میں سانپ نے بھی ایک شخص کو کاٹ کر اسپتال کی راہ دکھائی۔ خضدار میں بارش کے ساتھ ساتھ سیاحوں کی بھی آمد، کچھ نے منظر قید کیے، کچھ خود قید ہو گئے۔ پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے انتظامیہ بھی متحرک، پی ٹی اے میں بھی متاثرہ اضلاع میں امدادی سامان بانٹ رہی ہے۔ انتظامیہ نے سیاحتی مقامات اور نالوں کے قریب شہریوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی۔ بارشوں نے اندرون سندھ میں بھی تباہی مچا دی۔ ڈیم کو بھی شدید نقصان پہنچنے سے فیلڈ پروڈکشن بند میں شگاف پڑ گیا۔ دادو کے 12 دیہات زیر آب آ گئے۔ کراچی کے بعد سندھ میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ضلع دادو میں شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے گاج ڈیم متاثر ہو گیا۔ ڈیم کا پانی دیہاتوں میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں دادو کے 12 دیہات زیر آب آ گئے۔ سینکڑوں مال مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ مقامی انتظامیہ منظر سے غائب ہو گئی تو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی۔ مقامی شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں تو پاک فوج مدد کو آگے آ گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی ٹیمیں بارش سے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئیں اور آرمی انجینئرز نے موٹر بوٹس کے ذریعے ریسکیو کا عمل شروع کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی میڈیکل کور کی ٹیمیں متاثرین کو ریلیف فراہم کر رہی ہیں، جبکہ متاثرین کو خوراک اور رہائش کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی موسلادھار بارش 7 سالہ بچہ نالے میں ڈوب گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عطا حسین سے۔ جی عطا حسین، بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی موسلادھار بارش میں کراچی کے علاقے شیر شاہ میں جو ہے نالا ہے، نالے میں جو ہے 7 سالہ بچہ ڈوب گیا ہے۔ واقعے کے بعد فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ بچے کو بچانے کے لیے قائدین نے کئی گھنٹوں تک کوششیں کی، لیکن بچہ نہ مل سکا۔ بچے کے والد نے جو ہے ریسکیو اداروں سے مدد مانگی، مگر کوئی بھی نہیں پہنچا۔ بچے کے والد نے حکومت سے اپیل کی کہ برائے مہربانی میرے بچے کو ڈھونڈا جائے۔ جی بہت شکریہ عطا حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پہلی بوند برسے تو بجلی بند ہو جاتی ہے، لیکن بادل جم کے برسے تو پورا شہر بند ہو جاتا ہے۔ کراچی کی خوبصورتی بارش کے پانی میں تیرنے لگی۔ کرنٹ لگنے کے واقعات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ کراچی میں بادل مصیبت بن کے برسے، ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکیں ڈوب گئی۔ کرنگی، ملیر اور کازوے پر سیلاب۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پھر بارش۔ شارع فیصل، بہادر آباد، صدر، آئی چندرگر روڈ، جمشید روڈ، جہانگیر روڈ اور گرو مندر میں رات گئے بادل جم کر برسے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ قیوم آباد چرنگی کے قریب گھر ڈوب گئے۔ کہیں کھڑے اور کہیں بہتے پانی نے روزمرہ زندگی اجیرن کر دی۔ شہر قائد میں 4 روز کے دوران کرنٹ لگنے کے واقعات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ مون سون کی بارشوں نے کے الیکٹرک کی کلئی کھول دی۔ 3 دن میں 174 فیڈرز بند ہونے سے بیشتر علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔
जहां बहक अफराद के अहले खाना ने आला हुकाम से वाक़ये का नोटिस लेने की अपील की है कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान ने महज रिवायती ताज़ियत तो की, लेकिन अहले खाना से कोई राब्ता न किया। कराची में बारिश तो थम गई, लेकिन तबाही के असरात बाकी हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक क्यू के इलाके में सिवरेज का पानी जमा और कचरे का अंबार लग गया। मजीद जानते हैं अता हुसैन से। जी अता हुसैन, बताइएगा। इलाकों में जो है पानी, कचरा, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस वक्त मैं नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक क्यू के इलाके में मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन असगर आपको यहाँ पे दिखाए कि यहाँ पे ये एक छोटा बरसाती नाला भी है जो भरा हुआ है, जिसमें कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जबकि नाले के साथ, नाले के किनारे पे जो है कचरे का अंबार है। इस कचरे से जो है ताफुन फैल रहा है। शदीद इलाका मकीन जो है यहाँ के, वो शदीद परेशान हैं, जबकि बारिशों के बाद यहाँ की जो सड़क है उस पर गड़े भी पड़ना शुरू हो गए हैं और इन कचरों से जो है मजीद ताफुन जो है वो फैल रहा है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। हम कुछ इलाका मकीनों से हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको कितनी मुश्किलात पेश आ गई हैं। आप मुझे बताएं, बारिश के बाद ये सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो गई है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं, पानी, सड़कें टूटी हुई हैं, तो आप लोगों किन मुश्किलात का सामना? ये मुश्किलात अभी की नहीं है, ये साल की हैं। जब भी यहाँ पे बारिश होती है ये कचरा पूरा नाले से बाहर आ जाता है। पहले ये बरसाती नाला था जो ये कन्वर्ट हो गया है नाले के अंदर। अब इस इदारों को बोल के थक गए, लेकिन कोई यहाँ पे काम नहीं करता आगे, ना इसको साफ करता है, ना इसको पूरा प्रॉपर कवर अप करता है। बिल्कुल, कचरे के बायस इतनी तकलीफ है कि इतना कचरा जो पड़ा है उससे ताफुन फैल रहा है, लोगों को यहाँ पे रहने में मुश्किलात पेश आ गई। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आप मुझे बताएं, आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? क्या आपने कभी यहाँ पे कंप्लेन की? आपकी कंप्लेन पे अमल दरामद हुआ या नहीं? कंप्लेन तो हर जगह हमने करवाई, यहाँ पे केएमसी के पास, डेमसी के पास। असल में ही नाला बरसाती अब ये कन्वर्ट हुआ है सीवरेज सिस्टम में। ये गलियों के अंदर मेरे ख्याल में 2-3 साल से यही सिस्टम चल रहा है। न कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता है, न कहीं बाहर जा सकता है, जो पोजीशन आपके सामने है। लेकिन हमारे यहाँ पूछने वाला है कोई नहीं, न पानी है इस एरिया में, न गैस है, और सीवरेज का ये सिस्टम है। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कंप्लेनें कर के थक गए, लेकिन हमारे कोई पूछने वाला नहीं। हमारे साथ चंद और भी यहाँ के मकीन मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह यहाँ पे आप लोग गुजारा करते हैं। कचरे का अंबार है, ताफुन फैल रहा है, लोग बीमार भी हो जाते हैं, तो किस तरह आप लोग गुजारा करते हैं? हम लोग बहुत मुश्किल में है भाई, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। हमारी सालों हो गए हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इतनी गंदी कभी नहीं देखी हम लोगों ने। जितने चंद रोज से हम लोग मुश्किलात में, बहुत मुश्किलात है। कोई मेहमान आना है, हम लोग शर्मिंदा होते हैं उसके सामने, कहते आप लोग कैसे रहते हो यहाँ? कचरा गली की मशहूर हो रही है हमारी। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि यहाँ पे इन लोगों ने, जो यहाँ के जो मकीन है, ईद भी बड़ी मुश्किल से गुजारी है। और ये जो नाला है, इस नाले जब बारिश होती है नाला ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने के बाद इस नाले का जो पानी है वो मेन सड़क पे चला जाता है, जहाँ पे लोगों को मजीद मुश्किलात में मुब्तला कर देता है। और इसके अलावा जो नाले के अतराफ में जो ये कचरा मौजूद है, इससे मजीद भी जो है वो बीमारियां फैलने का भी खदशा है। जी शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दादू के इलाके काचू में सैलाब की तबाहकारियां, पानी का बहाव बरकरार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने पहुंच गए। मुराद अली शाह सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई जायजा भी उन्होंने लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शुएब थहीम से। जी शुएब थहीम, मुराद अली शाह ने इलाके का दौरा किया। जी बिल्कुल, दादू के इलाके काचो में सैलाब ने तबाही मचा दी है। हजारों अफराद सैलाब से मुतासर और बेघर हो गए हैं और सैकड़ों गांव इस वक्त सैलाब के पानी की लपेट में आ गए हैं। इस वक्त वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंच गए हैं। वजीर आला सिंध ने हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई जायजा भी लिया और इस वक्त जहां मुख्तलिफ इलाकों में शिगाफें पड़ी थी, वहां भी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जायजा लिया। और इस वक्त वहां की सूरत हाल ये है कि हजारों अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं और उनके अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक फौज के दस्ते भी पहुंच गए हैं, जो सुबह से उनका जो है मुतासरा इलाकों से निकालने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शुएब थहीम। 3 रोजा बारिशों से कराची वालों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। कई सड़कों पर पानी जमा है। यहाँ पर इतना पानी जमा है, यहाँ हम लोग काम पे जा रहे थे, बहुत मुश्किलात है। अभी आगे से भी रास्ता नहीं है, अभी कहाँ से जाएं? भाई बहुत मुश्किलात हो रही है हमारे को इधर पानी के, और कंपनी में जा रहे हैं, ये सारा इधर पानी है, कहाँ से जाएं? कोई सहूलियत हाल नहीं है इधर। अब रास्ता नहीं है, कोई भी कहाँ से जाएं? इधर खड़े में सुबह के देख रहे हैं, उधर भी ब्रिज पे इतना रश है,
और रास्ता ही नहीं मिल रहा, को घर जाने का। इधर सुबह से खड़े हुए हैं हम लोग। यही भी मुश्किलात का सामना करना है, जिस तरह दूसरे लोगों को करना पड़ा कि आने जाने में मुश्किलात हो रही है, घर पहुंचने में मुश्किलात हो रही है। लेकिन हमारी हुकूमत के वक्त को सोचना चाहिए ना, वो निकलते हैं कहते हैं सारे मामला अच्छे हैं। साई सरकार ने कभी मुल्क के लिए, सूबे के लिए कुछ नहीं करा सिवाय करप्शन करने के अलावा। इस्लामाबाद में बारिश के बाद हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशनगोई की है, जिससे दर्जा हरारत में भी कमी का इम्कान है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोखर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश के बाद गर्मी और हवस का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे से ही काली घटाएं आसमान पर छा गईं और बादल आसमान पर तैरते नजर आए। ठंडी हवा ने हबस को खत्म कर दिया और परिंदे आसमान पर अटकेलियां करते नजर आए। इसके बाद दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बलाई इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, हजारा समेत इस्लामाबाद में गरज और चमक के साथ मजीद मूसलाधार बारिश होगी, जिससे मौसम मजीद अच्छा हो जाएगा। बारिश के बाद दर्जा हरारत कम होकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब तक इस्लामाबाद में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नैब में पेश होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जब भी किसी अदालत या तहकीकाती एजेंसी ने बुलाया पेश हुआ, हमेशा कानून की पासदारी की। नैब FIA अदालतों में भी पेश हुआ। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा तरजीहात में सर फहरिस्त है। तमाम चीजें कायदे और कानून के मुताबिक चलती हैं। तमाम चीजें रूल्स और रेगुलेशन हर चीज की तय है। हर किसी का अपना अख्तियार है। तमाम चीजें रोजाना हजारों फाइलें चलती हैं। अब हर फाइल तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं आती, लेकिन जब हमारा दामन साफ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। हमें एक नहीं 10 नैब बुलाए, हम जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज दिखाएंगे। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो जिनका दामन साफ है उनको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी जब भी किसी अदालत ने या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हमें बुलाया, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुआ हूँ, मैं FIA में पेश हुआ हूँ और मैं नैब में भी पेश हूँगा। और तमाम रिकॉर्ड खुद ही बताता है कि इसके अंदर है क्या कुछ और उसकी हकीकत क्या है। मुल्क भर में 1 डे प्लांटेशन ड्राइव का आगाज हो गया। एक दिन में 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब और आलूदगी से पाक बनाने के मिशन का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म ने कौम को शजरकारी मुहिम में शिरकत की दावत दी। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, जिससे निमटने के लिए शजरकारी इंतहाई अहम और नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुद शजरकारी मुहिम में हिस्सा लूंगा। आइंदा नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए शजरकारी जरूरी है। वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इमरान खान ने टाइगर फोर्स और तलबा समेत पूरी कौम से शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाना हमारा हदफ है। मुल्क भर में आज से शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तान तरक्की करेगा। 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगाने का हदफ है, जिसमें से आज 20 लाख से ज्यादा पौधे लगाएंगे। 5 सालों में गुज़श्ता हमने 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगाए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस दफा जो हमें टारगेट मिला है पूरे पाकिस्तान में तो 10 अरब का है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा 1 अरब का टारगेट मिला है कि इस 5 सालों में, जिसमें ऑलरेडी 2 साल हमारे गुजर चुके हैं और 3 साल बाकी है, इंशाल्लाह इसमें हम 1 अरब टारगेट है, लेकिन इंशाल्लाह 1 अरब से ज्यादा इंशाल्लाह हम नए पौधे लगाएंगे, नए दरख्त लगाएंगे। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है ग्रीन पाकिस्तान, तो हम ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा के लिए काम करेंगे। लाहौर में मियावाकी के दरख्तों की शजरकारी की जा रही है। मजीद बता रहे हैं शादमान पार्क में मौजूद जैन नकवी। जी जैन, आगाह कीजिएगा, लाहौर में कितने कनाल अराजी पर दरख्त लगाए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत लाहौर में भी जो है वो टाइगर फोर्स डे आज मनाया जा रहा है, जिस हवाले से जो है शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। बाकायदा तौर पर अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो 51 मुकामात पर जो है वो मियावाकी के दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि 154 कनाल अराजी पर मुहित जो है ये दरख्त इनको लगाया जाएगा, जिनमें 1,60,000 दरख्त जो है वो आज के दिन लगाए जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादमान पार्क में, जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने हाथों से मियावाकी का पौधा लगाया और PHA की जानिब से जो है यहाँ पे मियावाकी की दीगर पौधे जो हैं वो भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लाहौर शहर के दीगर मुकामात पर भी जो है वो अब वुज़रा की जानिब से जो है वो मियावाकी के पौधे लगाए जाएंगे, और जिसमें टाइगर फोर्स और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो पेश होगी। ना सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया बल्कि इसके साथ साथ PHA भी जो है वो पेश होगी, और लाहौर के 154 कनाल अराजी पे जो है वो बाकायदा तौर पर मियावाकी के पौधे लगाए जाएंगे। अगर मेरा कैमरामैन ज़ीशान आपको दिखा सके तो इस वक्त मैं शादमान में मौजूद हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं आपके PHA की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पे मियावाकी के पौधे जो है उनको लगा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो है बाकायदा तौर पर इधर तकरीब में शिरकत की और अपने हाथों से जो है वो मियावाकी का पौधा लगाया। अगर मियावाकी के पौधे की बात की जाए तो 10% ज़्यादा जो है ये दीगर दरख्तों की निस्बत जो है ज़्यादा परवरिश पाता है। इस हवाले से जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जो है वो बाकायदा तौर पर अहकामात जारी किए और हदायत जारी की थी कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो हैं वो मियावाकी के पौधे लगाए जाएंगे और अर्बन फॉरेस्ट जो है उसको बनाया जाएगा, ताकि माहौल दोस्त जो एक इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो सके। इस हवाले से सरदार उस्मान बुज़दार ने तकरीब का इफ्तिताह कर दिया है और अब दीगर मुकामात पर दीगर पार्क्स में भी मियावाकी के पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जी शुक्रिया ज़ैन नकवी। मुल्क भर की तरह जिला सवात में भी मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। सवात में 9 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा वकार स्वाति से, जो शांगला टॉप से बराह रास्त मौजूद हैं। जी वकार स्वाति बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जिला स्वात में भी ज़िली इंतज़ामिया और महकमा जंगलात की जानिब से मानसून शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर स्वात भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कितने तादाद में वो पौधे लगा रहे हैं जिला स्वात में। सर जी, कितने तादाद में आप पौधे लगा रहे हैं? देखें जी, ये प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव थे प्लांटेशन के बारे में, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट स्वात में तो हमारा टारगेट है तकरीबन 9 लाख दरख्त लगाने का। आज जो हमारा 9 अगस्त जो कोरोना टाइगर्स डे है, इसमें हमारे साथ कोरोना टाइगर्स भी आए हुए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, लेवी, सिविल सोसाइटी सारी की सारी शामिल हुई है। ये जो स्पॉट हमने सिलेक्ट किया है जी, ये शांगला टॉप है। ये किस ज़माने में बड़ा थिक फॉरेस्ट था, लेकिन आपको पता है कि फिर जिस तरह भी कटिंग होती रही, तो इसको ये 50 हेक्टेयर एरिया है। हमारा टोटल प्लान इधर 50,000 दरख्त लगाने का है, जिसमें मेजॉरिटी दरख्त देवतार और ये जो हमारे नीडल शेप दरख्त हैं वो होंगे। आज हमारा प्रोग्राम ये है कि आज शाम तक 15,000 दरख्त से एक स्पॉट पे हम लगा देंगे। तो इसमें जो कोरोना टाइगर फोर्स के बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जवान आप देखेंगे वो आ रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सारा का सारा खुद मैनेज किया हुआ है, अमला उनका भी मौजूद है, पुलिस, लेवीज हमारे साथ हैं। तो ये कैंपेन हमारी पूरी मानसून में जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर मेरे साथ DFO भी मौजूद है। सर ये बताइए कि यहाँ ये पौधे लगाने का मकसद क्या है और कितना फ़ायदा मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूँ जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। डी साहब ने तफसील से बता दिए। जितने भी हमारे यहाँ पे कोलैबोरेशन में अब सिविल डिफेंस के लोग हैं, टाइगर फोर्स हैं, पुलिस हैं, ज़िली इंतज़ामिया हैं, हमारे स्टाफ हैं, सिविल सोसाइटी और एल्डर्स इलाके के नोबल्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि एक तो ये जगह खाली हो गई थी एक टूरिज़म के हवाले से, फिर ये है कि यहाँ पे अच्छा खासा ये देवदार का जोन है, कायल का। तो अगर 50,000 पौधे हम यहाँ पे रिहेबिलिटेट लगा भी सकें और उसको प्रोटेक्ट भी कर सकें, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सरमाया है यहाँ के हवाले से। शुक्रिया सर। जिस तरह के आज मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ है, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। यहाँ पर बड़ी तादाद में टाइगर फोर्स के जवान भी मौजूद है और मकामी लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वकार स्वाति, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में बारिश के बाद हब्स और गर्मी की शिद्दत में फिर इजाफा हो गया। शहर में इस वक्त मौसम कैसा है, इस हवाले से बता रहे हैं अली मलिक। जी अली मलिक, बताइएगा मौसम कैसा है? जी मौसम की बात की जाए तो लाहौर शहर के मौसम में एक दफ़ा फिर जो है वो वाज़ेह फ़र्क दिखाई दे रहा है। कल से पड़ने वाली बारिश का सिलसिला जहां थमा, वहीं हब्स और गर्मी की शिद्दत में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है।
آج جو ہے وہ گرمی کی شدت میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نمایاں واضح فرق دکھائی دے رہا ہے. شدید گرمی اور ہبس دکھائی دے رہی ہے، جبکہ درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 34 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں. جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے بارش کے سلسلہ جو ہے وہ کہیں مختلف لاہور کے مختلف علاقوں میں ہو سکتا ہے. اگر گرمی کی شدت کی بات کی جائے تو درجہ حرارت میں واضح فرق دکھائی دے رہا ہے، اور گرمی کی شدت میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ واضح فرق، اور ہبس میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شدت دکھائی دے رہی ہے. جی شکریہ علی ملک. کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بادل برسنا شروع ہو گئے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی. موسم کا احوال بتا رہے ہیں اشرف سولنگی. جی اشرف بتائیے گا. جی دیکھیں، شہر قائد میں جو مونسون کا سسٹم تھا چوتھا اسپیل محکمہ موسمیات کے مطابق وہ مکمل ہو گیا ہے، اس کا دورانیہ جو ہے ختم ہو گیا ہے، لیکن اس وقت بھی شہر قائد کے آسمان پر جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں. کہیں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہے تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے اور درجہ حرارت میں بھی خاصی کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کے چہرے تو کھل اٹھے ہیں. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج چھٹی کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، تو اتوار کے دن کو شہری بڑا انجوائے کر کے گزارتے ہیں. اور آج ان کے لیے خوشخبری اچھی ہے کہ موسم بھی اچھا ہے، خوشگوار موسم ہے، درجہ حرارت بھی کم ہے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے اور اس موسم کو مزید انجوائے کر کے آج چھٹی کا دن گزاریں گے. لیکن وہ باہر نہیں جا سکتے کیونکہ تفریحی مقامات جو ہے لاک ڈاؤن کے باعث بند کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھروں میں اور گھروں کے آس پاس ہی اس دن کو گزار سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شہر قائد میں بارش کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، شہری اصل میں ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. جگہ جگہ جو ہے سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی تکلیفیں مشکلاتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اور دیگر ممالک میں اگر بارش ہوتی ہے تو وہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں شہری جو ہیں وہ بارش کو انجوائے نہیں کرتے اور مسائل کو جو ہے حل کرنے میں لگے رہتے ہیں. مزید بتا رہے ہیں اویس محمود. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل، 14 اگست کی آمد ہے اور اس آمد کے ساتھ ہی جو مارکیٹیں ہیں، جو سٹالز ہیں وہ سج جاتے ہیں. پاکستانی پرچم کے منسلک جو جھنڈے ہیں، جھنڈیاں ہیں کپڑے کے بنے، دوسرے جو بیچز ہیں پاکستانی پرچم کے بنے ہوئے، وہ مارکیٹوں میں فروخت ہونے کے لیے آ چکے ہیں. میں اس وقت اشنگری بازار میں موجود ہوں. ایک سٹال یہاں پہ لگا ہوا ہے، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو بتا سکے تو یہاں پہ ہر اشیاء جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. بیچز یہاں پہ موجود ہے، چوڑیاں جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، ہیئر بینڈز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے، فرینڈشپ جو ہاتھ میں باندھتے ہیں وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے. بیچز جو پاکستانی پرچم کے منسلک جو بیچ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. جھنڈے بھی یہاں پہ موجود ہیں خرید و فروخت کے لیے، یہاں پہ جو ہے وہ آ چکے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے جو پاکستانی جو پشاور کے شہری ہیں وہ بھی جو ہے وہ خرید و فروخت میں جو ہے وہ خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ جو پشاور کے شہری بھی جو ہیں وہ محب وطن ہونے کا جو ہے وہ ثبوت پیش کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. سر کیا کہیں گے، 14 اگست آ رہی ہے، ماسک بھی آپ نے پہنا ہوا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، تاریخی لحاظ سے 14 اگست کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے. یہ اس دن ہمارا جو پاکستان تھا، وطن عزیز جو تھا، وہ اس دن مارج وجود میں آیا تھا. اس کے علاوہ جو ہم محب وطن ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس مبارک دن کو منائیں اور دوسروں کو بھی اس کا کہیں، سمجھائیں لوگوں کہ اس دن کو منانا چاہیے. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کے شہری کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے، بہت ہی اچھا میسج انہوں نے دیا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک محب وطن ہونے کے ساتھ ساتھ جو کشمیری بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے ہر مشکل میں، ہر جو جدوجہد میں ان کے ساتھ جو ہے پاکستانی عوام جو ہے ان کو نہیں بھولی اور ان کے جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ ویس محمود، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں بھی ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے کسی سے کم نہیں. راولپنڈی اور اسلام آباد ڈائسس کے آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے 14 اگست کے مناسبت سے ملی نغموں کا البم ریلیز کر دیا، جس میں وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا. مزید بتا رہے ہیں محمد اسلم کھوکر. جی محمد اسلم بتائیے گا.
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट जोसेफ कैथेड्रल बिशप हाउस रावलपिंडी में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, जिन्होंने यौम आज़ादी के हवाले से जो है वो मेरी नगमे तरतीब दिए हैं और जिनका बाकायदा जो है वो एल्बम भी रिलीज़ हो चुका है और नामवर जो गुलकार हैं उन्होंने मेरी नगमे भी गाए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जोसेफ अरशद, हम उनसे भी बात कर रहे थे। सर, ये बताइएगा कि यौम आज़ादी के हवाले से आपने जो एल्बम तरतीब दिया उसके हवाले से बताया कि मकसद क्या था, क्या आप पैगाम क्या देना चाहते थे? सबसे पहले तो मैं सच टीवी और तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम सब पाकिस्तानी बड़ी धूमधाम से जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाते हैं और 2017 में हम पाकिस्तानी के नाम से एक एल्बम हमने जो है वो जो है रिलीज़ किया, जिसमें जो है पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान अमन, मोहब्बत, भाईचारे और फ़रोग का जो है वो पैगाम दिया गया है। और यही हमारा मकसद था, क्योंकि मैंने एज ए बिशप जो है अपनी ज़िंदगी का मकसद हयात भी अमन और उम्मीद चुना है। और हमारा इन गीतों के ज़रिए, मिली नगमों के ज़रिए से यही पैगाम है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और पाकिस्तान में अमन, सुलह, सलामती और भाईचारे को फ़रोग देने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो अक़लीती बिरादरी है उनका जो किरदार है उस पे हवाले से मैं थोड़ी सी भी अपने ख्यालात से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान में जो मसीही बिरादरी है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत में नुमाया किरदार अदा किया है। आप सब जानते हैं कि आज़ादी की तहरीक में भी मसीहों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पाकिस्तानी रहनुमाओं और ख़ास तौर पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शाना बशाना वतन की आज़ादी के लिए जदोजहद की। और फिर पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक भी ख़ास तौर पर मसीह बिरादरी ने ख़ास तौर पर 3 शोबों में खिदमत नुमाया तौर पर सर अंजाम दी है, जिसमें तालीम का शोबा है, सेहत का शोबा है और समाजी खिदमत का शोबा है। इन तीनों शोबों में मसीह बिरादरी के अदारे और मसीही लोग बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की खिदमत में हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का कहना है कि मसीह बिरादरी और अक़लीती बिरादरी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में जो किरदार अदा किया और इस हवाले से इस 14 अगस्त पर उनका खुसूसी एल्बम हम है पाकिस्तानी एक अच्छा तोहफा है, डेडिकेट किया गया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अवाम के लिए, जिसको नामवर गुलकार जिनमें नदीम अब्बास हैं, हुमैरा चन्ना हैं, गुलाम अब्बास हैं, सामा जहाँ हैं, उन्होंने इनको गाया है। और इस 14 अगस्त पर यह खास मसीह बिरादरी की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को जो है एक तोहफा दिया गया है, एक अमन का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई है। जी शुक्रिया असलम खोकर। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत के खूबसूरत और पुरफिजा मकाम पर लकड़ी से बनाई गई फन तामीर की खूबसूरत शाहकार कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी आज भी बाबा कौम की पुरअसर शख्सियत और मौजूदगी का एहसास दिलाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकर। वादी क्वेटा से 122 किलोमीटर के फासले पर वाक़या जिला ज़ियारत के पुरफिजा मुकाम पर पाकिस्तान की ये तारीखी रेजिडेंसी 1892 के अवाइल में तामीर की गई थी, जिसे उस वक्त हुकूमत बरतानिया के आला अफसरान आर्जी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते थे। 1948 को इस रेजिडेंसी की तारीखी अहमियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नासाजी तबीयत के बायस अपने जाती मौलिज के मशवरे पर 1 जुलाई को यहाँ तशरीफ लाए। बाबा कौम ने 2 माह 10 दिन इस रेजिडेंसी में क़याम किया। 15 जून 2013 में दहशतगर्द हमले से मुतासिर होने के बाद हुकूमत ने 16 करोड़ रुपए की लागत से मुरम्मत करवा कर दोबारा इस रेजिडेंसी को अपनी असल हालत में बहाल किया।
फन तामीर के इस खूबसूरत शाहकार की मरम्मत के काम में मुल्क के माहिर तरीन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने हिस्सा लिया। 8 कमरों पर मुश्तमिल लकड़ी से तामीर की गई इस खूबसूरत रेजिडेंसी में दोनों अतराफ से 28 दरवाजे हैं। रेजिडेंसी के कमरों में एक कमरा मोहतरमा फातिमा जिना, एक कायद-ए-आज़म के जाती मौलिज कर्नल इलाही बख्श, जबकि एक कमरा बाबा कौम के मोतमिद खास के लिए मुख्तस किया गया था। इस तारीखी रेजिडेंसी में एक कमरा ऐसा भी है जहां कायद-ए-आज़म दोपहर और रात को खाना खाने और रफ़क़ाए कार के साथ शतरंज खेला करते थे। रेजिडेंसी में रखी गई बाबा कौम की जाती अशिया आज भी उनकी पुरअसर शख्सियत और मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज़, कोयटा। हमारा परचम ये प्यारा परचम, परचमों में अजीम परचम। दुनिया में जितनी आजाद रियासतें हैं उन सब का अपना अपना कौमी परचम है जो हर रियासत की पहचान होता है। हमारे परचम में 2 कौमी नजरिया पूरी तरह जलवागर है जो क़याम पाकिस्तान का बाइस बना। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम पाकिस्तान के कौमी परचम की मंजूरी 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली में दी गई थी। ये कौमी परचम हमारी आज़ादी और कौमी वकार की अलामत भी है और जामिन भी। कौमी परचम पाकिस्तान की सलामती और दिफा का इस्तारा भी है। इस कौमी परचम को बुलंद करके ही हमें ये इफ्तिखार हासिल हुआ कि अब हम भी दुनिया के आज़ाद मुल्कों की सफ में शामिल हो गए हैं। जहाँ तक कौमी परचम के एहतराम का ताल्लुक है, हम इसकी हुर्मत और इज्जत पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं क्योंकि ये कौमी परचम हमारी आज़ादी और वकार का निशान है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का दिल अपने कौमी परचम की मोहब्बत से सरशार है। और एक कैप खरीदी है और एक खास तौर पर पाकिस्तान का एक परचम खरीदा है क्योंकि मुझे अपने परचम से बहुत प्यार है और हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपने परचम को कभी झुकने नहीं देंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान। और फिर कौमी परचम की इज्जत और हुर्मत उन सरबकाफ मुजाहिदों और सफ शिकन सिपाहियों से पूछो जो पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी जानें देकर पाकिस्तान से अपनी वफा को निभाते हैं। और मुल्क की सरहदों पर लहराता हुआ हमारा कौमी परचम ही इस अमर का मजहर होता है कि यहाँ से हमारे पाक वतन की मुकद्दस सरहदें शुरू होती हैं। हमारा ये सब्ज़ हिलाली परचम जो हमारे इस आज़ाद खित्ते का एक निशान है, इसको हम इसकी अजमत और अहमियत ये है कि पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान की शनाख्त है और इस परचम के ज़रिए ही हम अपने मुल्क का नाम जब रोशन करते हैं, बुलंद करते हैं। वतन अजीज की सरहदों के पासबान और निगहबान जब वतन की अजमत पर कुर्बान होते हैं तो उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए शोहदा के ताबूत पर कौमी परचम फैलाना जरूरी समझा जाता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। भारत में हिंदू गुंडों ने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी। जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद न बोलने पर भारत में मुसलमान रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया। भारतीय रियासत राजस्थान में रिक्शा ड्राइवर को इंतहा पसंद हिंदुओं ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। इंतहा पसंदों ने 52 साला फार अहमद को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान बुजुर्ग मुसलमान की दाढ़ी खींचते रहे और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इंतहा पसंदों के तशद्दुद से बुजुर्ग शहरी के दांत टूट गए। हमला आवरों ने मार मार कर बुजुर्ग शहरी का चेहरा जख्मी कर दिया और आंखें सूज गईं। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद एक बार फिर कश्मीरियों के हक में बोल पड़े। कहा कि मेरे मुताबिक कश्मीर के मामले पर खामोश रहना ऑप्शन नहीं। उनका कहना था कि रद्द-ए-अमल का इल्म होने के बावजूद मैंने कश्मीरियों के हक में बोलने का फैसला किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर पर खुलकर बोलने पर महातीर मोहम्मद का शुक्रिया अदा किया। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से गैर कानूनी इक़दामात का 1 साल मुकम्मल होने पर मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में मुनक्किद होने वाली तकरीब से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने कहा कि मेरे मुताबिक कश्मीर के मामले पर खामोश रहना एक ऑप्शन नहीं है। मुझे अपने कहे पर कोई अफसोस नहीं। We can list out the atrocities and violations of human rights that have been committed on the Kashmiris. While it will serve to remind Delhi that we know what you are up to and we will continue to speak out against you for these acts
we are also appealing to your sense of fair play and regards for humanity. महातीर मोहम्मद का कहना था कि रद्द अमल का इल्म होने के बावजूद मैंने कश्मीरियों के हक में बोलने का फैसला किया था। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से मलेशिया की पाम ऑयल की बरामदात पर फर्क पड़ा, लेकिन ऐसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की ये कोई बड़ी कीमत नहीं। We have witnessed how occupation and invasion of territories in numerous parts of the world remain unsolved for decades, and their peoples, young and old, men and women and children, suffering for decades. समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोलालमपुर में तकरीब के दौरान अहले कश्मीर की हिमायत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जबरो इस्तेहसाल के खिलाफ लबकुशाई पर मैं डॉक्टर महातीर मोहम्मद का मशकूर हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के नौमुंतखब सदर वोल्कन बोस को आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के नौमुंतखब सदर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि UNGA के सदर मुंतखब होने के नाते में मुतादिद ममालिक का दौरा करता रहता हूँ। इसी सिलसिले में बतौर मुंतखब सदर UN 75वां जनरल असम्बली पाकिस्तान का दौरा करूंगा। वोल्कन बोस्कर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात होगी, जिसमें 75वें जनरल असम्बली एजेंडे के मसाइल और तरजीहात पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। इस्लामाबाद में सस्ते इतवार बाजार तो खुल गए, लेकिन रिलीफ वाली कोई चीज नहीं। शहरी कहते हैं कि रिलीफ कब मिलेगा, बता रहे हैं अलमदार बलोच। जी अलमदार बलोच, आप H9 इतवार बाजार में मौजूद हैं, क्या मंजर है? जी देखिए, बिल्कुल कोरोना केसेस में तो कमी आ रही है और दिन ब दिन जो है वो कोरोना ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन जो महंगाई थी वो वहीं की वहीं है। महंगाई जो है वो कम नहीं हुई। कोरोना की वजह से लोगों के जो कारोबार है वो भी मुतासिर हुए और शहरियों की यही दुआई होती थी कि महंगाई को कम किया जाए, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। अब हम यहाँ पर H9 बाजार में खड़े, इतवार बाजार भी अब जो है वो खोल दिए गए हैं। यहाँ पर शहरी आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, कोरोना तो अब ख़त्म होता जा रहा है, महंगाई पर आप क्या कहेंगे? आपके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना कैसा है? महंगाई है, कम हुई है, नहीं हुई, इस पे आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई अपनी जगह उसी तरह कायम है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है जितनी पहले थी। पहले ये था कि कोरोना की वजह से जनाब कारोबार बंद है, सामान पीछे से नहीं आ रहा, मंडियों से सामान की रसाई नहीं है, तो इनका शोर होता था जी कि हम इस तरह से महंगाई कर रहे हैं। अब जब कोरोना खुल चुका है, उसके बावजूद भी ये सस्ता बाजार है। अभी मार्केट्स का हाल तो इससे भी बुरा है, इसके बावजूद यहाँ पर महंगाई में कोई कमी नहीं है, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा रेट्स हैं। अभी मैं इधर भी मार्केट में गया था और कुछ बाकी सामान लेने गया हूँ, मार्केट्स में बहुत महंगाई है। ये कोई स्पेशल माफियाज हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि बिल्कुल महंगाई को कम नहीं होने दे रहे। और आम बंदे की जिसकी औसत तनख्वाह 15-20 हज़ार है, उसका जीना हराम हो गया हुआ है यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, हुकूमत जो जिसको 2 साल हो गए, इसने बड़े वादे और दावे किए थे कि हम आएंगे तो आवाम को रिलीफ देंगे। कुछ भी नहीं, किसी माफिया पे काम नहीं किया। आप देख लें, पेट्रोल माफिया है, महंगाई माफिया है, किसी माफिया पे इन्होंने काम नहीं किया, किसी जगह कोई काम नहीं किया। सब झूठे दावे थे इनके, और अभी तक कोई गवर्नेंस के अंदर इनका कोई काम नहीं है, ना महंगाई में, ना आवाम को रिलीफ देने पे। किसी जगह कोई। यहाँ पर जो हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा, कोई इकदामात ऐसे नजर नहीं आए कि आवाम को रिलीफ मिले। तो इनका यही कहना है कि हुकूमत अपने वादे पूरे करे, और ये जो महंगाई है इसके पीछे भी एक माफिया है, तो इस माफिया पे कंट्रोल किया जाए तो महंगाई खुद ब खुद जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। मुल्क में फाइन आटे और मैदे की कीमतों में इजाफा जारी है। 6 माह में फाइन की बोरी में 2500 रुपए तक का इजाफा हो चुका। आज पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन ने 17 अगस्त को डी चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया। मजीद बता रहे हैं सुहेल राजा। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन के सदर जो है वो 17 अगस्त को धरना देने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मैदा और आटे की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इनके कारोबार में भी फ़र्क पड़ा है। इनसे बात करते हैं, एसोसिएशन के सदर हैं। जी आप बताएं, जी आपकी हुकूमत से क्या मुतालबात हैं? आपके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, क्या वजह जो आप धरना देने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। बात यह है कि हमारा हुकूमत से सैंपल से 2-3 मुतालबे हैं जी। एक तो फिल फोर मैदे फैन आटे की पुरानी कीमत बहाल की जाए, ताकि मुल्क भर में हम नान रोटी पुरानी कीमत पे बेच सकें। ठीक है जी। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि गन्नम जो 1400 रुपये मन मिलों की दी जा रही है,
ملوں کو دی جا رہی ہے، اس کا جو میدا فین ہے وہ کدھر ہے، کہاں ہے؟ کیوں کہ یہ 1400 من والی جو گندم ہے اس کے میدے فین کی بوری کا ریٹ مل میں 3600 روپے، مارکیٹ میں 3900 روپے. یہ پہلے ملتا رہا ہے، میرے پاس یہ بل موجود ہے، اب بھی ملنا چاہیے. تو یہ میں بڑی مطلب حیرانی کی بات ہے کہ یہ میدا فین کدھر جا رہا ہے؟ 1400 روپے جو من والی گندم ہے اس کا. آٹا تو تیار ہو رہا ہے، 860 گورنمنٹ اعلان لگا رہی ہے، وہ آٹا بھی نہیں مل رہا. انہوں نے ایک آٹے کو نام دے دیا یہ اسپیشل کا. وہی آٹا بوریوں میں ڈال کے 79 kg کی بوری بنا کے 1200 روپے پر 20 kg وہ پڑتا ہے، 4800 روپے مارکیٹ میں تندوروں میں سپلائی کی جا رہی ہے. ابھی بوری میں کتنا اضافہ ہوا ہے ابھی؟ دیکھیں جی، گزشتہ 3 ماہ سے 1800 سے لے کے 2200 تک فی بوری 80 kg اضافہ ہو گیا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ 5 کلو وزن کم کر دیا گیا ہے، 84-85 kg سے 80 kg کر دیا گیا. اس کے بعد جو سوتر کی بوری تھی تندور والا 60 روپے کی سیل کرتا تھا، وہ بوری بھی غائب ہو گئی. بالکل آپ نے سنا نان بھائی ایسوسی ایشن کے صدر کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آٹے اور میدے کی قیمتوں کو جو ہے کنٹرول کرے. گزشتہ 4 ماہ سے جو آٹے کی قیمت جو بوری میں جو وہ 2200 سے 2500 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. اور مل مالکان کی ملی بھگت کا یہ نتیجہ ہے. حکومت اور مل مالکان جو ہے وہ گٹھ جوڑ کی وجہ سے جو ہے وہ آٹا اور میدا جو ہے کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو 17 اگست کو ڈی چوک پر احتجاجی دھرنا دیا جائے گا، جس میں ملک بھر کے اور کے پی کے پنجاب بھر کے جو تمام تنظیمیں جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گی. جی بہت شکریہ سہیل راجہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بات کریں گے کھیل کے میدان سے. انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران 3 وکٹوں سے شکست دے دی. جوس بٹلر اور کرس ووکس کی شاندار بیٹنگ کی بدولت انگلش ٹیم نے گرین شرٹ سے فتح چھین لی. سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 سے برتری حاصل ہو گئی. سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ 13 اگست سے ساؤتھمپٹن میں شروع ہوگا. 3 روز تک ٹف ٹائم دینے کے بعد چوتھے دن شاہین 169 رنز پر ڈھیر ہو گئے. میزبان انگلینڈ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف ملا، جو اس نے 60 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا. یوں کرکٹ کے بانی ٹیم نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں 3 وکٹوں سے ہرا دیا. شاہینوں نے چوتھے دن اپنی دوسری اننگ 8 وکٹوں کے نقصان پر 137 رن سے دوبارہ شروع کی اور آخری 2 وکٹوں نے 32 رنز جوڑے. چوتھے دن کے آغاز میں ہی یاسر شاہ نے جارحانہ اننگ کھیلی. Never bagged a pair. Is he off the pair? He is, with a nice punch down the ground. That's well played. Very powerful stroke. یاسر شاہ 158 رنز کے مجموعے پر 33 رنز بنا کر وکٹوں کے پیچھے آؤٹ ہو گئے. Edge done gone. نسیم شاہ 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ محمد عباس 3 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. یوں بیٹسمینوں نے دوسری اننگ میں روایتی ناقص بیٹنگ کر کے انگلینڈ کو میچ میں واپسی کا موقع دے دیا. انگلینڈ کی جانب سے دوسری اننگ میں سٹیورٹ براڈ نے 3، کرس ووکس اور بین سٹوک نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جوفرا آرچر اور ڈوم بیس کے حصے میں 1 وکٹ آئی. دو 277 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی آدھی ٹیم 146 رنز پر پویلین لوٹ گئی. اس کے بعد جوس بٹلر اور کرس ووکس نے 139 رنز کی شاندار شراکت داری قائم کرتے ہوئے میچ کا پانسا پلٹ دیا. That's a gorgeous shot. One thing he is a natural timer of a cricket ball. Width and dealt with by Ali Pope. کرس ووکس نے ناقابل شکست 84 رنز کی اننگ کھیلی تو جوس بٹلر نے بھی 75 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، لیکن میچ اپنے حق میں کر لیا. Cut away for 4. انگلش کپتان جو روٹ 42 رنز بنا کر نسیم شاہ کا نشانہ بنے. سبلی کو 36 رنز پر یاسر شاہ نے پویلین روانہ کیا.
what a पाकिस्तान की जानिब से यासिर शाह ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास ने एक एक विकेट हासिल की। what a 18 ज़िलहज तारीख़ इस्लाम में खास अहमियत रखता है। इस दिन सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म खुदाबंदी से हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन और वली मुकर्रर करने का ऐलान किया। ईरान और इराक समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद गदीर के रंग बिखरे हुए हैं। मुसलमानान आलम की जानिब से गली कूचों, शाहराहों और चौराहों की सजावट, कोरोना के सबब मुश्किलात का शिकार कुंभों के लिए इमदादी पैकेजेस भी एहतमाम किया गया है। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।